Hello everyone, welcome to Instant Education for Class 8. So today we are we have started already this chapter and we have done till the, we have done till the Kharif and Rabi crops. So now will continue from here. If you have not seen that video, first see that video, then come here. Okay, so let's start this chapter. Chalo, basic practices of the crop production. सो बेसिकली भोजों के माइंड में क्वेश्चन आया कि जो पैडी है, जो राइस क्रॉप है, वो बेसिकली आपको पता है वो रेनी सीजन में ग्रो होता है, दैट इज़ अ खारिफ क्रॉप. सो बट वाई इट कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन? सो पहली आंसर्स, paddy requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season. So it requires a lot of water and it can't be grown in the winter season, it will just die there, है ना. तो इसलिए let's come here. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. So when we are cultivating a crop, it requires a lot of activities, and that activities are done by farmers, and it requires a lot of time for that. Okay, so let's see. इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो चलो, तो अब जो एक्टिविटीज़ फार्मर्स करते हैं और टास्क करते हैं उसको क्या बोला गया है? टूवर्ड्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो. सो देयर आर 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. कितनी है? 7 है. फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द सॉइल, है ना. लूज़ कर रहे हैं सॉइल को, टर्न कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं. सो दैट वी विल सी. एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लूजनिंग, turning and cleaning the soil. Second is sowing. Okay, when something we are planting a seed or saplings, है ना. Adding manure and fertilizers, we will see the difference between manure and fertilizers. Irrigation which is referred to the water. Protecting from weeds. अब I think you all know what is weeds. If you know, just जल्दी से comment box में लिख दो. I am giving you 5 seconds. 1 2 3 4 5. Okay, so weeds are wild plants. Okay, मतलब उनको हमने ग्रो भी नहीं करा, वो एकदम से आ गए हमारे पूरे न्यूट्रिएंट्स लेकर. चलो, तो हार्वेस्टिंग देन स्टोरेज. लेट्स रीड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. Preparation of the soil is the first step before growing a crop. Okay, it is a first step. So what is happen in this? So first what we do, so it is very important to turn and loose the soil. So if we will loose and turn and clean the soil, what will happen? This allows the roots to penetrate deep into the soil. जो रूट्स है आपके वो डीप अंदर तक जा सकते हैं. अंदर तक जाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे और अच्छे से क्रॉप अच्छा ग्रो होगा. तो अलाउज रूट्स टू ब्रीथ. So then second point is roots to and it also loose soil allows the roots to breathe easier, है ना. loose soil होगा तो अच्छे से breathe कर पाएंगे. correct. So the loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes. loose soil होगा तो वो हेल्प करेंगे अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स की ग्रोथ में. इफ़ अगर अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स अच्छे से ग्रो हो जाते हैं तो दे विल ऐड ह्यूमस टू द लूजन सॉइल एंड इट विल हेल्प फार्मर, है ना. फार्मर के लिए होगा और यू ऑल नो दीज आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर. चलिए, तो नेक्स्ट आता है हमारा यू हैव लर्न. तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख लीजिए. दैट व्हाट इन्वॉल्व्स इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड व्हाट आर बेनिफिट ऑफ इट. बेनिफिट्स भी लिख लो. चलो, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस. क्या पढ़ा है हमने? द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, करेक्ट. वाटर, करेक्ट. एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन एडिशन डेड प्लांट्स, एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. सो हमने पढ़ चुका है कि ये अच्छे मिनरल्स कंटेन करता है. सम लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स लाइक इंसेक्ट्स, है ना. कुछ ऐसे छोटे छोटे animals. So these nutrients are again absorbed by plants. So see what happened. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are absorbed by the plant.
since only a few centimeter of top layer of supports the plant growth. तो आपने पढ़ा है ना, जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें that is rich in nutrients as well as in the humus. ये you have read in the class 7th in the soil chapter, है ना. So ये कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया. अब हम डायरेक्ट आते हैं the process of loosening and turning of the soil. What it is claw. देखो गाइस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि हम सॉइल को लूज़ करेंगे, टर्न करेंगे, बट भाई टेल मी व्हाट इज़ दैट प्रोसेस कॉल्ड. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ. एक प्लॉ इज़ अ टाइप ऑफ अ टूल. Plows are made of wood or iron. These are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. Plowed field में have a big clumps. तो बहुत आपने देखो ना कंकर टाइप, वो पत्थर टाइप होते हैं, उनको हम clumps of soil called crumbs कहते हैं. अगर वो रहेंगे तो फिर रूट जाएंगे, तो रूट अच्छे से नहीं हो पाएंगे, तो इन्हें पहले मतलब तोड़ना पड़ता है. It is necessary to break these crumbs. It is very important. So leveling the field is beneficial for sowing as well. Leveling करोगे मतलब उसे क्लीन करोगे, अच्छे से crumbs grow करोगे, so it will help in the sowing of the crops. Leveling, अब ये जो leveling का जो work होता है, ये जो leveling किससे help से करी जाती है? लेवलर से करी जाती है. So this is done by a leveler. I hope it is clear. Sometimes manure is added to the soil before tilling. जब हम लूज़ कर रहे हैं, सॉइल को क्लीन कर रहे हैं, उससे पहले ही हम मैन्योर ऐड कर सकते हैं. वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सॉइल, है ना. दिस सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग. आई होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर. चलिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. What are agriculture implements mean? What are tools? Okay, what are tools that is required for for it. So let's see, है ना. चलो, so there we have seen leveler, we have seen, है ना, breakdown. So ये सब देखा है हमने. तो चलो break. अब before sowing the seed, जब आप sow करें, it is necessary to break the soil clumps. ये हम पढ़ चुके हैं. तो अब ये ना आपको क्रम्स वगैरह ब्रोक करने में, तो दिस इज डन बाय द वेरियस टूल्स. देयर आर मेनी टूल्स टू डू दिस वर्क. द मेन टूल यूज फॉर पर्पज इज प्लॉ, हॉय एंड कल्टीवेटर. पहले हम प्लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और इसे प्लग नहीं कहते हैं, इसे प्लॉ कहते हैं, ठीक है. तो आप इसे प्रोनाउंस सही करना. दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एशियंट टाइम्स. बहुत पहले से ये प्रोसेस यूज़ करी जा रही है फॉर टिलिंग द सॉइल, है ना. tilling the soil, adding fertilizers to the soil, removing the weeds. So this is plow is the tool which remove the weeds also. Wild plants को भी ये remove करता है. And turning the soil. This is made of the wood and drawn by a pair of goats or other animals. तो मैं इसकी आपको दिखाती हूँ, तब आपको इसे अच्छे से समझ में आएगा. So this is the plow. ठीक है ना. तो ये क्या करती है, यहाँ पर जैसे कि ये बोला है, ठीक है, ये एनिमल्स हो गए, मान लो ना एनिमल्स, अरे है ना, ये है. अब यहाँ पर इनकी ये वुड सी बांधी जाती है. एंड द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज लॉन्ग. इनको प्लॉ शार्प भी कहते हैं, ठीक है. प्लॉ शार्प ये इनका मेन टूल होता है, ठीक है. दिस इज़ अ हैंडल एट द वन. तो ये मतलब ये बुल जो होता है उनके नेक्स पे यहाँ पर एक मतलब एक टाइप ऑफ वुड अटैच करा जाता है, एक बीम अटैच करी जाती है. सो दैट इज़ दिस इज़ द टूल. लेकिन ये बहुत टाइम लेता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टूल. हॉय. It is a simple tool which is used for removing weeds. ये भी removing weeds for loosening the soil. It has a too long. अभी इसका फोटो भी दिखाते हैं आपको. ये है हर. See this is the hoe.
इट्स वेरी नाइस टूल बट इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़. दीज आर सेइंग मतलब वो सिंपल सा टूल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ईजी है, ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं. और इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन. एक लंबी सी एक रोड होती है, वुड होती है आयरन की. अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू इट्स एंड. एक बहुत एंड में देखो, ये देखो एक बहुत अच्छी सी आयरन की ये फिट होती है इसमें. ओके बहुत अच्छा टूल है, वैसे आप भी यूज़ कर सकते हैं. वर्क्स लाइक अ वे एंड इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स. इसे भी एनिमल्स के द्वारा पुल करा जाता है. लास्ट टूल इज कल्टीवेटर. ठीक है, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के टूल है. नाउ दिस प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर. कल्टीवेटर, द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव द लेबर टाइम. अगर हम कल्टीवेटर ये देखो ये यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए. क्या होता है बच्चा पाड़ी देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेव करता है लेबर. एक ही लेबर चाहिए होता है इसमें. एंड टाइम इट ऑल्सो सेव्स, इतना टाइम नहीं लगाता है. तो ये जो होता है ना, कल्टीवेटर के द्वारा अब ये प्लॉइंग करी जाती है. और अब तो आप देख ही सकते हो कितनी जनरेशन बदल गई है. तो ये देखो एक ही कल्टीवेटर है और बिल्कुल अच्छे से हो रही है और इजी वे से हो रही है, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ सोइंग. सोइंग क्या होता है? सोइंग इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी सेलेक्टेड, है ना. ठीक है, तो सोइंग के लिए अच्छी वेराइटी ऑफ सीड्स करता है. अभी हम अभी देखेंगे भी कि कैसे होती है. तो चलो देखते हैं हम. तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है. अभी मैं आपको एक शॉर्ट वे में एक्टिविटी समझा देती हूँ. ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी सी एक्टिविटी है, टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें करने में और हमारे पास उतना टाइम नहीं है. सो देखो क्या करना है. वॉट यू हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी. एक बीकर लो, टेक द बीकर. ठीक है, बहुत गंदा बनाया मैंने वैसे, एक सेकेंड. दिस इज़ अ टाइप ऑफ बीकर. अब जब मैंने इसमें बीकर में मैंने वाटर डाला, मान लो ये दिस इज़ द वाटर. क्या बना रही हूँ मैं, छोड़ो करते. ये है आपकी वाटर. ठीक है, इसके अंदर वाटर है. नाउ आई विल पुट सीड्स टू इट. मैं बहुत सारी सीड्स लाई हूँ, मैंने सारी इकट्ठी डाल दी. अब कुछ सीड्स मेरी जो है वो फ्लोट कर रही हैं. मैं सीड्स किससे बनाऊँ, ऐसे ऐसे कर दो भाई. ये देखो समझ लो ये सीड्स है. ठीक है, अब मेरे कुछ सीड्स ना अंदर तक है ना, वो बस गिर गई हैं, वो फ्लोट नहीं कर रही हैं इनकी तरह. तो डैमेज सीड्स बिकम एंड आर लाइटर. तो डैमेज सीड्स आर लाइटर. अब ये ऊपर वाली सीड्स है ना, दीज आर डैमेज सीड्स. बहुत इजी थिंग कि आपको समझना चाहिए. डैमेज सीड्स ऊपर फ्लोट करेंगी और जो बॉटम नीचे आ गई हैं दैट आर गुड सीड्स. तो मीन्स इट हैज़ अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना. इट इज़ ईटन बाय सम बैक्टीरिया और लाइक दैट, है ना. तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. तो ये ऐसे आप चेक कर सकते हो कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स नीचे हैं, ऊपर डैमेज सीड फ्लोट करेंगे. सो अगर आप भी एक प्लांट ग्रो कर रहे हो तो ये रिमेंबर रखना. अब देखो सोइंग के लिए भी देयर आर 2 टूल्स, ट्रेडिशनल टूल एंड सीड ड्रिल. चलो पहले पढ़ते हैं ये. So there are several tools which are used for sowing seeds. First of them is traditional tool. Now tell me, what is traditional? Tell me. That is old tools. पहले ज़माने में क्या यूज़ है. दिस टूल इज़ यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इन द शेप लाइक फनल. एक टाइप देखो कैसा होता है, एक टाइप फनल होता है और एक नीचे टाइप ऐसी रोड होती है. पूरे आप डालोगे सीड्स तो वो अंदर तक चली जाएगी. ओके, बट क्या होता था, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू द 2 or 3 पाइप्स के द्वारा वो पास हो जाती थी अंदर सॉइल के अंदर. दीज एंड प्यूट्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर. हियर दिस इज द सीड. ठीक है, मानो ये देखो एक फनल टाइप है, इसके में रोड लगी है, इसमें सीड्स डालेंगे, ये अंदर तक पहुंच जाते हैं.
बट इससे ना क्या होता था कभी कभी कि एक में ज़्यादा पहुंच गई, कभी इस एक में कम पहुंची है, सो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट देयर इन दिस टूल, है ना। तो बेसिकली अब सीड ड्रिल देखो, सीड ड्रिल देखो ये होता है सीड ड्रिल, दिस इज़ नाउ डेज टूल। ये जो अभी जनरेशन हमारी चल रही है उसमें ये टूल होता है। इट इज़ अ इक्वल टूल, इक्वल अमाउंट ऑफ सीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड या न्यूट्रिएंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली है, ठीक है। सो लेट्स रीड अबाउट इट। Nowadays, the seed drill is used for the sowing with the help of tractors. It is done by the help of tractor. They sow the seed uniformly at the equal distance and depth. ठीक है, ये यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे समथिंग इक्वल रहती है, जिससे इक्वल अमाउंट ऑफ सबको सीड्स मिले। इट इंश्योर द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये भी इंश्योर करते हैं जैसे अगर हमने सीड्स डाली इसके अंदर, सो ये इसको पूरा सॉइल से ढक देता है, ओके। सो दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, क्योंकि अगर बाहर लगी रहेंगी तो बर्ड्स तो आएंगी और खा जाएंगी उसे, अब वो तो बचेंगे नहीं और फार्मर फिर से लाएगा, फिर से करेगा। इससे अच्छा उसको सॉइल के अंदर नीचे रखो। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। दिस सेव्स टाइम, दिस सेव्स लेबर ऑल्सो। चलो, appropriate distance between these seeds is necessary to avoid overcrowding। अगर हमें ना appropriate रखेंगे, approximately equal distance रखेंगे तो it is necessary to avoid the overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times a few plants may to be have removed to prevent overcrowding. सो बेसिकली इस मेथड की वजह से क्या होगा, सीड ड्रिल की वजह से ये आपके जो भी प्लांट्स, ये ओवर क्राउडिंग तो अवॉइड करेगा ही, और ये सबको ना सफिशिएंट मिलेगी सनलाइट। ये नहीं है कि ज़्यादा आ रही है, सो बेसिकली दे विल गेट द सफिशिएंट नॉर्मल सनलाइट, दे विल गेट द इक्वली न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, ओके। तो दीज आर द थिंग्स कि हमने सोइंग भी पढ़ लिया कि सोइंग में 2 टूल्स आर रिक्वायर्ड, विच इज़ ट्रेडिशनल टूल एंड दी सीड ड्रिल। सो बेसिकली आप पूछोगे इसकी कोई डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज? नो, इट डजंट हैव एनी डिसएडवांटेज। इफ़ आई विल आस्क व्हाट आर दी डिसएडवांटेज ऑफ दिस, सो भाई डिसएडवांटेज हैं कि यार लाइक दे विल दी सीड्स विल बी, द न्यूट्रिएंट्स विल बी नॉट equally distributed to the soil, okay, and it requires a lot of time, lot of hard work, and the work is not properly done or not properly managed, okay. So अब आता है next topic, adding manure and fertilizers. So basically these substances which are added to the soil to form a nutrients for the healthy growth. अच्छी प्लांट की ग्रोथ के लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। Soil supplies mineral to the crop plant. These nutrients are essential for the growth of plants. So soil supplies mineral, है ना, nutrients देता है प्लांट को, क्रॉप को। These nutrients are essential, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। सो कंटिन्यूस, अब देखो क्या हो रहा है, अब देखना ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने ना एक लैंड ख़रीदा, ओके, 50% आपका 50% मेरा, ठीक है। तो मैंने एक लैंड ख़रीदा, ठीक है। मैंने वहाँ पर बहुत सारे, आई हैव ग्रोन सो मैनी प्लांट्स देयर, ठीक है। मैंने बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करा। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ तो ग्रो कर लिया, अब क्या होगा, अब मैंने उन प्लांट्स को सबको हटा दिया। अब मेरा क्या होगा, सॉइल क्या हो जाएगा, सॉइल विल बी बैड, नॉट, इट विल नॉट बी फुल, है ना। सॉइल अच्छे से नहीं होगा तो वो गंदा हो जाएगा सॉइल हमारा। तो क्या होगा कि यही बताया गया है, इधर भी हमें इधर यही बताया गया है कि कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे ना, बाकी प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स ले जाएंगे। अब मैं दूसरा क्रॉप ग्रो कर रही हूँ तो हमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करने ही पड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग,
Okay, continuous cultivation of soil make the soil pure in nutrient. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with the nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in the weak. तो insufficient, improper manuring it's held in the weak plants. सो मैन्योर क्या है? मैन्योर एक ऐसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट. फार्मर्स डंप. अरे अब ये देखो ये क्या है? मैन्योर बेसिकली मैन्योर जो है तुम्हारा वो नेचुरल सब्सटेंस ऑफ है विच इज़ ऑब्टेन बाय डीकम्पोजिशन, है ना. डीकम्पोजिशन से हेल्प होता है. और ये करता कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. ठीक है, तो ये अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. पार्ट 3 आएगा इसका, उसमें हम ये पूरा प्रॉपर देखेंगे. और क्या पता हम ये भी कर लें कंप्लीट, और इसका NCERT सोल्यूशन का भी एक वीडियो आ जाएगा. तो अभी बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, सो वी विल एंड आवर सेशन हेयर ओनली. तो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर. इफ़ एनी डाउट कम जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स में लिखो. ठीक है, सो and please subscribe my channel also. Subscribe, like and share with your friends so that all can study with you as well. Okay, so I hope you like my video. So bye everyone, and just revise this chapter, and tomorrow the part 3 will come. Thank you. Bye.